Hanji, good morning, 7th class. Okay, so today we are going to start a new chapter, that is transportation in animals and plants. Okay, our new chapter is transportation in animals and plants. So what does transportation meaning? Transportation meaning when anything we have to move from one place to another place. We call that transportation. Now, what is the need of transportation in our body? In our body, what materials have to be transported? You know, gases, food, water, minerals, everything in our body have to be transported. So, for that, the system, the organs that work together, we include them in a transportation system. So, in this chapter, we are going to study about detail in transportation system, different organs that play their role in transportation. Okay. So, I am going to start this chapter. And firstly, under the transportation system, the first is circulatory system. Circulatory system meaning in our body, food, water and oxygen are to transported to all the parts of the body. In humans, in our body, what materials? Food, oxygen, water. These materials have to be transported to all parts of the body. All parts meaning from the fingers like this part, brain, hands, feet, legs, all parts of the body. The food have to be transported to the all parts of the body. Oxygen and water also have to be transported to the all parts of the body. Okay, Raze? For that, waste product. Now, waste product meaning the waste products that are not useful for the body, that are also transported from all parts of the body to be removed from the body, so that we can remove the waste products. So waste product also collected from all parts of the body and gathered from the body. So for that, for the transportation of these substances, a system is used. In case of humans, we call that system circulatory system. For the transportation of food, water, oxygen based product, it is done via circulatory system. It is done via circulatory system. Okay, Rajesh, the transport of all materials is done via circulatory system. Now, what is circulatory system? The system that transports whole the material like food, water and oxygen to our body, and that also collect waste material from the cells of the body and helps to remove that waste material out of our body. Okay, Rajesh? ना सर्कुलेटरी सिस्टम के कौन कौन से ऑर्गन्स है? जैसे हमने डाइजेस्टिव सिस्टम किया था, रेस्पिरेटरी सिस्टम किया था, उसमें क्या था? डिफरेंट ऑर्गन्स ने मिलकर वो सिस्टम बनाया हुआ था. जैसे लिवर था और हमारे पास स्टमक था, इंटेस्टाइन थी, है ना. दे ऑल कंबाइंडली मेक डाइजेस्टिव सिस्टम. सो इन केस ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम विच आगे कौन से विच पार्ट्स प्ले रोल? फर्स्ट इज ह्यूमन हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड. These three basic parts of the circulatory system. तो उनमें से first क्या है हमारे पास? Pumping organ, that is human heart, and the second क्या है? Blood vessels, the tubes through which blood moves from one place to another place, from one organ to the other organ and to the whole body. साथ में आपको एक स्ट्रक्चर दिख रही है ना, तो इसमें ये सारी क्या है? These all are the blood vessels, blue red, these all are the blood vessels, these blue red are the blood vessels through which the transport of materials takes place by blood. Okay, Raze, now blood क्या? Blood is a fluid that helps in the transport of the material. Blood के रिगार्डिंग हम डिटेल में स्टडी करेंगे इन सभी के बारे में. इधर वो ह्यूमन हार्ट है, इधर वो ब्लड वेसल्स है, इधर वो ब्लड है. वी विल स्टडी इन डिटेल. ओके, फर्स्टली एक हमने जस्ट क्या है एक बार देखी है कि जो हार्ट की स्ट्रक्चर है कैसी है, और जो सर्कुलेटरी सिस्टम जो पूरे का पूरा हमें दिखाया हुआ है ये कैसा है. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल अबाउट ऑल दीज स्ट्रक्चर्स. हाँ जी रजे, फर्स्टली ब्लड. सबसे पहले हम किसकी स्टडी करेंगे? नाउ ब्लड क्या है? Blood is a blood transport substances in the body. What is the function of the blood? Basic function क्या है? Blood transport substances in the body. Blood क्या है? It is a fluid
ब्लड क्या है? इट इज अ फ्लूइड पार्ट. ब्लड इज अ red colored fluid that consists of plasma and cells. अब ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट होता है? बेसिकली मेरे पास ब्लड है. ब्लड इज अ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट्स ऑफ प्लाज्मा, सेल्स, वाटर एंड सम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स आल्सो. ओके, तो ब्लड में आगे कौन कौन से पार्ट्स हैं? फर्स्टली हम ब्लड को क्या बेसिकली 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. वन इज फ्लूइड पार्ट, हम कहते हैं लिक्विड लाइक स्ट्रक्चर होती है, दैट इज प्लाज्मा. ठीक है. सेकंड वन इज सेल्स. सेकंड पार्ट क्या होता है? एज ए सेल्स. तो ब्लड में बेसिकली क्या है? 2 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं. किन किन से मिलकर बना होता है ब्लड? वन इज फ्लूइड दैट इज प्लाज्मा. सेकंड क्या होता है? एज ए सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं. अब ब्लड सेल्स आगे कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं. ब्लड सेल्स फर्दर कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स, और इसको आप और क्या बोल सकते हैं? कैपिटल आर, कैपिटल वी, कैपिटल सी. आरबीसीज पा देते हैं हम इनको कई बार. आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ओके, एंड प्लेटलेट्स. अब 3 टाइप्स की ब्लड सेल्स हमने देख लिए. वन इज RBCs, that is red blood cells, and the second one is WBCs, that is the white blood cells, and the third one is the platelets. जैसे अब तीनों सेल्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं. जो ब्लड सेल्स हैं और यू कैन से जो ब्लड कार्पोसेल्स हैं, इनके डिफरेंट फंक्शन है. जो रेड ब्लड सेल्स हैं, इनका क्या फंक्शन है? रेड ब्लड सेल्स कंटेन अ पिगमेंट. Now red blood cells contain a pigment called hemoglobin. रेड ब्लड सेल्स में क्या प्रेजेंट होता है? राजे एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हेमोग्लोबिन. नाउ हीमोग्लोबिन क्या होता है? हमारे पास एक आयरन पिगमेंट होता है. हीमोग्लोबिन क्या होता है? राजे हीमोग्लोबिन इज अ आयरन पिगमेंट. एंड हीमोग्लोबिन क्या है? अपनी और किसको अट्रैक्ट करता है? ऑक्सीजन गैस को. जो हीमोग्लोबिन का पिगमेंट है, फर्स्ट थिंग तो रहता है आयरन पिगमेंट है, सो दैट इज रेड इन द कलर. एंड जो रेड ब्लड सेल्स में क्या है? हमारे पास हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. इट प्रोवाइड्स रेड कलर टू द ब्लड. जो ब्लड का रेड कलर होता है, किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन प्रोवाइड्स रेड कलर टू द ब्लड. सेकेंडली हीमोग्लोबिन क्या है? इट अट्रैक्ट्स ऑक्सीजन. इसमें और ऑक्सीजन में एक बॉन्डिंग हो जाती है, इजीली ऑक्सीजन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है. सो हीमोग्लोबिन किस चीज में हेल्प करेगा? इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम वन ऑर्गन टू होल बॉडी. जो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन आ रही है, वो कहाँ पे हमने किया था ना, कहाँ पे एक्सचेंज हो रही थी? हमारी ब्लड वेसल्स में आ रही थी. एंड इन ब्लड वेसल्स क्या प्रेजेंट था? ब्लड. ब्लड के कौन से सेल्स ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं? आरबीसीज. व्हाई? बिकॉज आरबीसीज कंटेन्स अ pigment called hemoglobin which transports oxygen. तो ओवरऑल आरबीसीज का फंक्शन क्या हुआ? आरबीसीज contains a pigment that is hemoglobin which helps in the transport of oxygen to the whole body parts. ये सारे के सारे बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन चाहिए, ब्रेक डाउन करना है ना फूड का, एनर्जी चाहिए. सो ऑक्सीजन हैव टू बी डिलीवर्ड टू द होल बॉडी. हु डिलीवर्ड? Which part of the blood delivered the oxygen to the whole parts of our body? Red blood cells. कौन सा part? Red blood cells. Why red blood cells? Because red blood cells contains a pigment called hemoglobin which transports oxygen. Okay रजे. Second हमारे पास क्या है रजे? White blood cells meaning WBCs. अब जो white blood cells क्या होते हैं? They act as a army. You know what is the function of army? They act as a soldiers. They act as a soldiers of our body. Soldiers का क्या काम होता है? हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना ना. हमारी आर्मी का क्या काम है? हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है, हमारी कंट्री को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है. कि जैसे कोई दुश्मन बाहर से हमारा आता है तो वो क्या है? हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे लिए फाइट करते हैं. Right? So same function of WBCs. That's why I call WBCs act as a soldiers of the body. Meaning WBCs protect our body against the germs or against the harmful microorganisms. Now what is the function of WBCs? WBCs fight against the germs and protect us from the disease. हमारी बॉडी में जितनी भी हार्मफुल जर्म्स की एंट्री होती है उनसे क्या है? प्रोटेक्ट करते हैं. कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? उनसे फाइट करके. और दे हेल्प अस टू रिमेन डिजीज फ्री, कि हमें किसी तरह की कोई क्या बीमारी ना हो, उस चीज के लिए क्या है? हेल्पफुल होते हैं. ओके रजे. नाउ व्हाट आर द प्लेटलेट्स?
जैसे प्लेटलेट्स हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। प्लेटलेट्स किस चीज में हेल्प कर रहे हैं? इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। अब क्लॉटिंग ऑफ ब्लड क्या होता है? क्लॉटिंग क्या होता है? कोई चीज का क्लॉट बन जाता है। क्लॉट मीनिंग जैसे मान लो समटाइम्स क्या होता है, आप लोग कोई सीजर एनीथिंग कोई कटर यूज कर रहे हो तो आपके क्या है फिंगर पे एक छोटा सा कट लग जाता है, तो ब्लड क्या है बाहर आना स्टार्ट कर देता है ना। एंड आफ्टर सम टाइम यू ऑब्जर्व कि वहाँ पे क्या है एक सॉलिड सा पोर्शन ब्लड का लगा होता है और जो ब्लड है वो क्या है बाहर आना बंद हो जाता है। वैसे वो कैसे होता है? जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं इसमें एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है, डेट इज फिब्रिन। फिब्रिन नेम का एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। जैसे ही क्या हमें एक छोटी मोटी इंजरी लगती है तो फिब्रिन क्या है एक्टिव हो जाता है और उस इंजरी वाली जगह पे क्या है एक नेटवर्क, क्या है एक थ्रेड्स का क्या है एक नेटवर्क, पूरा प्रोटीन वो क्या है एक नेटवर्क बना देता है, ऐसा एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। तो ब्लड जैसे इस बाहर आता है स्ट्रक्चर में से वो वहां पे क्या हो जाता है क्लॉट हो जाता है, क्योंकि बाहर नहीं निकल पाता। वहां पे क्लॉट होने के कारण उसका जो फ्लो था बॉडी से आउटसाइड हो रहा था वो क्या हो जाता है स्टॉप हो जाता है। सो क्लॉटिंग मीनिंग क्या है? जो ब्लड रन हो रहा है हमारी बॉडी में से एट टाइम ऑफ इंजरी, दे हेल्प टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम आवर बॉडी। सो रजे क्लियर है? कितने ब्लड सेल्स होते हैं हमारे पास? 3। फर्स्ट क्या होते हैं? रेड ब्लड सेल्स। सेकंड क्या होते हैं? व्हाइट ब्लड सेल्स। एंड थर्ड क्या होते हैं? प्लेटलेट्स। रेड ब्लड सेल्स का क्या फंक्शन है? दे कंटेन्स अ पिगमेंट हीमोग्लोबिन विच हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। और WBCs का क्या फंक्शन है? दे फाइट अगेंस्ट द डिजीज। प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन था? हेल्प इन द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। और हमारे पास जो थर्ड इस साइड एक और पोर्शन की हमने बात की थी, डेट इज प्लाज्मा। प्लाज्मा में हमारे पास क्या था? एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर थी ना। नो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा? प्लाज्मा हेल्पफुल इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वेस्ट मटेरियल, कार्बन डाइऑक्साइड, दीज ऑल थिंग्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द प्लाज्मा, फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। क्लियर वैसे? सो ब्लड के फंक्शंस क्लियर हो गए हमें। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्या आ जाता है? ब्लड वेसल्स। अब ब्लड किस में फ्लो कर रहा है? ब्लड फ्लो इन द वेसल्स। नाउ व्हाट आर द ब्लड वेसल्स? The tube-like structures in which blood flows from one part of the body to the other part. We call them blood vessels. Now, rather you know, blood vessels are of 3 types. Blood vessels कितनी types की होती हैं? Blood vessels are of 3 types. First क्या होती हैं? Arteries. And the second क्या होती हैं? Veins. And the third one is capillaries. हमारी बॉडी में कितनी टाइप्स की ब्लड वेसल्स होती हैं? 3. First is arteries. The second one is veins. The third one is capillaries. Okay, Raze. Now arteries क्या होती हैं? Arteries carry oxygen rich blood from the heart to all parts of the body. अब arteries क्या कैरी कर सकती हैं? क्या कैरी करती है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीनिंग जिस ब्लड में क्या होती है ऑक्सीजन कहां से कैरी करती है? फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मीनिंग फुल बॉडी को स्प्रेड कर देती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और आर्टरीज की जो वॉल्स होती है वो क्या होती है? थिक होती है। आर्टरीज की वॉल्स क्या होती है? थिक। सेकंड कौन सी टाइप होती है? जैसे वीन्स होती हैं। तो वीन्स क्या करती हैं? वीन्स कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड। वीन्स क्या कैरी कर रही है? कैरी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी टू द हार्ट। सारे के सारे पार्ट से लेकर कहां पे लेके आ रही है? ह्यूमन हार्ट में लेकर आ रही है, क्योंकि जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड हमारी बॉडी में था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, वो ब्लड में क्या है प्लाज्मा उसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है। कहाँ पे आ जाएगी? ह्यूमन हार्ट में। हार्ट से कहाँ पे चल जाएगी? लंग्स में। और लंग्स में से हम क्या कर देंगे? उसे एक्सहेल कर देंगे और फिर से न्यू ऑक्सीजन वाला ब्लड क्या है पूरी बॉडी में क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। ओके, और इनकी वॉल्स क्या होती है? थिन वॉल्स होती है। जैसे एंड थर्ड हमारे पास क्या होता है? कैपिलरीज। थर्ड क्या होती है? कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती है? दे आर वेरी थिन ब्लड वेसल्स। इन दोनों से ज्यादा थिन ब्लड वेसल्स होती हैं और इन दोनों को क्या करती हैं? ज्वाइन करती हैं। कैपिलरीज ज्वाइन आर्टरीज एंड वीन्स, उन दोनों का कनेक्शन है। जे कैपिलरीज क्या है? आर्टरीज और वीन्स का क्या है? कनेक्शन है हमारे पास। ओके, सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है? पल्स। व्हाट इज पल्स और पल्स रेट?
आप लोग डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो डॉक्टर सबसे पहले ऐसे आपकी पल्स रेट चेक करते हैं। क्लियर? तो पल्स रेट क्या होता है? द ब्लड फ्लोज थ्रू आर्टरीज, क्योंकि आर्टरीज में कौन सा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। द ब्लड फ्लोज थ्रू आर्टरीज एट अ हाई प्रेशर कॉजिंग थ्रोविंग मूवमेंट फॉल प्लस। जैसे ही आपके हाथ रखा होता है ना, तो जो हाथ में आर्टरीज प्रेजेंट होती है राजे, इनकी थ्रोविंग मूवमेंट होती है ऐसे ऐसे, मीनिंग थोड़ा प्रेशर के कारण ब्लड फ्लो कर रहा है। इसलिए जहां पे जब हाथ रखते हैं ना, आप खुद चेक कर सकते हो, अगर एग्जैक्ट आप आर्टरी पे हाथ रख रहे हो तो क्या है, आपको पता चलेगा अप डाउन हो रहा है वहां पे। ठीक है, तो डेट इज कॉल्ड पल्स। उस मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? पल्स बोल रहे हैं। और 1 मिनट में कितनी पल्स रेट होती है हमारी? 72 से लेकर 80 तक, 72 to 80 पर मिनट हो सकती है। मतलब 72 नॉर्मल होता है, वैसे 80 तक आपकी हो सकती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जो पल्स रेट है 72 से लेकर 80 के बिटवीन आपकी हो सकती है पर मिनट। ओके, और जो पर मिनट में हम मेजर कर रहे हैं उसे हम पल्स नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? पल्स रेट, क्योंकि हमने उसकी एक रेट निकाल दी कि 1 मिनट में इतनी होती है। क्लियर? आप सभी अपनी पल्स रेट चेक करके देखना, ट्राई करके। हाँ जी, देखिए एक बहुत ही एक अच्छी स्ट्रक्चर आपको दिखाई हुई है, जो मैं कल एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको कि जो ब्लड है वो कैसे फ्लो हो रहा है। आपको वो मूवमेंट्स दिख रही है ना, कितनी अच्छी मूवमेंट्स दिख रही हैं। तो इसमें क्या है, हमें पूरे का पूरा क्लियर हो रहा है कि जो ब्लड है वो देखिए इस चीज से ब्लू है इधर, मीनिंग डीऑक्सीजनेटेड है। इधर पूरे का पूरा क्या है? रेड है, मीनिंग ऑक्सीजनेटेड है ना। देखो हार्ट पंप कर रहा है, लंग्स में जा रहा है, ब्लड की मूवमेंट हो रही है ना। तो ये सारी की सारी क्या है? फंक्शनिंग है। जैसे इस साइड हमें दिखाया हुआ है सिंपली, उस साइड थोड़ी उसमें मूवमेंट है। तो ये पूरी की पूरी हमारे पास क्या है? फंक्शनिंग है। किस चीज की फंक्शनिंग है? कि जो ब्लड है हमारी बॉडी में कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, जो हार्ट है ना उसकी वर्किंग कैसे है, वो कैसे वर्क कर रहा है। आई विल एक्सप्लेन इट इन। ठीक है, तो उसके लिए पहले हम थोड़ा सा हार्ट की नॉलेज निकालेंगे, फिर उसकी पूरे के पूरे फंक्शंस की बात करेंगे। ओके, कि ह्यूमन हार्ट क्या है, कैसे उसकी वर्किंग हो रही है। हार्ट बेसिकली हमारी बॉडी में हार्ट क्या होता है? आर्फिस जो हमारी मिट्टी है ना, इस साइज का होता है। ओके, तो हार्ट का काम क्या होता है? जो हमारा पंपिंग ऑर्गन है, मीनिंग ब्लड को क्या है? पंप करता है। बेसिकली हार्ट की स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। इसके कितने पार्ट्स होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। 2 हमारे पास ऑरिकल्स होते हैं। ठीक है, जो ऊपर वाले दोनों ऑरिकल है और जो नीचे वाले दोनों क्या है? वेंट्रिकल्स हैं। एक राइट साइड होगी, एक लेफ्ट साइड होगी। पूरी की पूरी फंक्शनिंग वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास। ओके राजे, होप सो यू विल अंडरस्टैंड, hope so you understood all these topics. Okay, if you face any problem you can message me. Thank you.